दूसरी चीज हमारी अब क्या है, आइजा। अब हम सुकून से क्या करेंगे, अगले 15 मिनट जो हमने पढ़ा है उसी को रीड करेंगे, और जब रीड कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, बेतहाशा ड्राफ्टिंग करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर्म्स लेंथ का, इंशाल्लाह उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा ठीक। आज की क्लास में हमें पता भी चल जाएगा यार, इसको थोड़ा करोगे, आवाज आ रही है, ठीक है जी। सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 में आ जाए, और आइजा 550 रिलेटेड पार्टी पेज नंबर 75 पे आ रहा होगा। पेज नंबर 73 पे आ रहा है। चले जी, सब आ चुके हैं यार भाई, चले, टाइम नहीं, आ जाए। डन हो गया? चले, जो पढ़ रहा हूं सिर्फ उसको आपने हाईलाइट करना है, ठीक हो गया? हाँ जी, 73 पे आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। Why standard requires the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding related parties? As per ISA 700, auditor expressed the following opinion. In our opinion, the FS presents fairly in all material respect in accordance with. So what is relevant IFRS for related party? हाँ जी, कौन सा? IS 24. IS 24 related party disclosure standard का नाम है। अगेन अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, सही है? The objective of this standard is to ensure that entity's financial statement contains the disclosure necessary to draw to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by the transaction and outstanding balance including commitments with, वही वाली लॉस आ रहा था 50 का 200 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था, ये वही वाली बात है। डन हो गया प्यारे बच्चों? As the management is required to disclose all the transaction with the related party, therefore ISA 550 deals with the relating to related party relationship and transaction in an audit of financial statement. Specifically, it expands on how ISA 315, ISA 330 रिस्पॉन्स का स्टैंडर्ड है, मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड आइजा 240 फ्रॉड अभी हमने नहीं पढ़ा, सही? तो हमने 315 और 330 को सामने रखा हुआ है। आर टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द, कहां पर है, एसोसिएटेड विद द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। डन हो गया भाई? अच्छा जी, अगले पेज पे आ जा। ये पेज सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ताकि एक बैकग्राउंड पता चल जाए IS 24 क्या कहता है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगले पेज पे मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ आइजा 550 रिलेटेड पार्टीज। पहला ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड to identify fraud risk factor, if any, arising from the related party relationship and transaction that are relevant to identify and assess the risk of material misstatement due to. Second objective, to obtain sufficient appropriate audit evidence whether the RP relationship and transaction have been appropriately identified, account for and disclosed. ये इसने अब तक आपको सब बैकग्राउंड बताया है। अगले पेज से हमारा आइजा स्टार्ट हो रहा है। जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसी के ऊपर अब 2-3 पेजेस को वो कवर कर रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन एंड, who is responsible to prepare FS in accordance with the IFRS? हाँ जी, management. Yes, if the management is responsible, then to obtain an understanding of the related party relationship transaction, the auditor shall make inquiries with the management, such as the identity of the entities related party, including changes from the nature of the relationship between the entity and these related party, whether the entity entered into any transaction with these related parties during the period, and so type and the purpose of the transaction. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? आइडेंटिटी मतलब
नेम, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, उसी के ऊपर उसने एक एक लाइन लिखी हुई है। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी। As management is also responsible for design and implementation of internal control, therefore auditor shall also inquire with the management to obtain understanding of the control that the management has established to identify, account for and disclose related party relationship and transaction in accordance with IFRS। लिख दें आप पे, in accordance with IFRS। Authorized and approved significant transaction and arrangement with the related parties, authorized and approved significant transaction and arrangement outside the normal course of business। तो आरपी का ट्रांजैक्शन को कौन ऑथराइज अप्रूव करता है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कौन? डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शेयरिंग द related party information। Once the auditor has obtained the understanding of the related party relationship and transaction, the auditor shall discuss and share such information with the engagement team। full stop। जो रीड करा रहा हूं सिर्फ आपने फिलहाल वहीं तक रीड करना है। डन हो गया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था, ये जो पहला ऑब्जेक्टिव था, इसकी समरी क्या थी? द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन बाय मेकिंग इंक्वायरी विद द management and considering the control क्यों? in order to identify and, तो इसका मतलब है, सुनिएगा, जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह पढ़िएगा। after performing the above mentioned procedures, what are the above mentioned procedure मेरे भाई? risk assessment procedures, the auditor may come across with the following risk। पहला risk, related party transaction may not be properly account for and disclose। पहला रिस्क, आरपी के ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। इसके प्रोसीजर साथ साथ पढ़ लो। प्रोसीजर टू इंश्योर दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैज बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज, कंफर्मिंग और डिस्कसिंग द स्पेसिफिक ऑफ द ट्रांजैक्शन विद द इंटरमीडिएट सच एज बैंक, लॉ फर्म्स, गारंटर्स और एजेंट्स, confirming the purposes, specific terms or amount of the transaction with the related, where applicable, reading the financial statement or other relevant financial information if available on the related party for the evidence of the accounting of the transaction in the related party accounting records। का यहाँ तक बात समझ? तो या तो उसके आप ऑडिटेड एफएस देख लें या उससे कंफर्म कर लें, बीच में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है उससे कंफर्म कर लें। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक? अगला रिस्क, एज पर आइजा 315, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। इसके नीचे क्या लिखा है उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ चुके उसको। इसके प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं। फॉर आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, द ऑडिटर शैल इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इफ एंड इवेल्युएट। क्यों एग्रीमेंट देखना है? तीन पर्पसेस के लिए, तीन नीचे डॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिलहाल यहां तक सही है। दूसरा, द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। और तीसरा, द ट्रांजैक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद IFRS। कौन सा IFRS? IAS 24। क्या यहाँ तक आपको ये जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वर्ड दिख रहा है, पाकिस्तान में IFRS है, कनाडा में IFRS नहीं है। तो तभी आयजा ने वर्ड क्या यूज किया है? एप्लीकेबल, बिकॉज जो इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। यूएस वाले अपना अपना गैप यूज करते थे, यूके गैप यूज करते थे। तो आयजा तो सबके लिए इंटरनेशनल है, वो स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के लिए नहीं है जिन्होंने क्या अडॉप्ट किया हुआ है। तभी उसने बार बार कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? एप्लीकेबल। जो आपके मुल्क में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपने वो, हमारे यहाँ कौन सा होता है? IFRS, जिसका नाम है IAS 24। सही है जी? अच्छा जी। और फिर आखिरी, ऑब्टेन audit evidence that the transaction have been appropriately authorized and approved। डन हो गया प्यारे बच्चों? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगले पेज पे आए। There is a significant risk due to, इसको नहीं पढ़ना हमने, इसको अभी फ्रॉड पढ़ा नहीं, हालांकि आप देख ले 3 प्रोसीजर्स लिखे हैं, लेकिन हमने इसको अभी डिस्कस नहीं करना। तीसरा रिस्क, ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी में not have been identified or disclosed by the management।
during the audit, इसका प्रोसीजर क्या होगा? During the audit, the auditor shall remain alert when inspecting the records or documents for the arrangements or other information that may indicate the existence of related party relationship or transaction that the management has not identified or identify तो की हुई थी लेकिन जानबूझ के आपको डिस्क्लोज नहीं की थी। सही, दोनों सिनेरियो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों? बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन ऑब्टेन एज पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। दूसरा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त विद गवर्नेंस कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न। कुछ मुल्कों में ये होता है कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बताना होता है कि जो सेल्स आप बता रहे हैं इसमें से कितनी सेल रिलेटेड पार्टी की, जो आप परचेज बता रहे हैं इसमें से कितनी परचेजेस रिलेटेड पार्टी से। तो वो इनकम टैक्स रिटर्न से भी आपको पता चल सकता है, बिकॉज वो रेगुलेटर को कम्युनिकेट की गई है, वहां से भी आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी। बहुत से मुल्क का कानून होता है कि आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी आपको वो किसको बताना पड़ेगा? अपने रेगुलेटर को बताना पड़ेगा। आप अगर लॉ भी देखें तो वो आपसे कहता है रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इससे भी आप आरपी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल। Statement of conflict of interest from management and those charged with governance. Record of the entities investment contracts and agreement with the key management। और जो हमने पढ़ा था की मैनेजमेंट पर्सनल भी आपके रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में होते हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? ये आपके प्रोसीजर्स हो गए कुछ जो कि किस चीज के लिए हो गए? टू इंश्योर दी कंप्लीटनेस। अगले पेज पे क्या लिखा हुआ रहा होगा? अगले पेज पे क्या लिखा हुआ रहा होगा? अगले पेज पे क्या लिखा हुआ होगा? अगर आपने कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली। सिचुएशन 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और undisclosed related parties or significant related party transaction. If the auditor identifies the related party or significant related party transaction that the management has not previously identified, और दोनों में फर्क क्या है? आइडेंटिफाइड और कम्युनिकेटेड मेरे भाई, इंटेंशन का फर्क है। आइडेंटिफाई नहीं करी, मैंने भी आइडेंटिफाई नहीं करी, मुझसे भी मिस हो गई, चलो जानबूझ के नहीं भी, मुझे पता थी आरपीए लेकिन मैंने जानबूझ के आपको, जब आप मुझसे इंक्वायरी करने आए थे मैंने जानबूझ के आपको कम्युनिकेट नहीं करी। द ऑडिटर शैल promptly communicate the relevant information to the other members of the engagement team. Request management to identify all transaction with the newly identified related parties for the auditor's further evaluation. Inquire as to why the entity's internal control over the related party relationship and transaction failed to enable the identification or disclosure of the related party relationship or transaction. Perform appropriate substantive audit procedures on a newly identified related party। जो कि क्या होंगे? जो कि क्या होंगे? जो कि क्या होंगे? Perform the substantive audit procedure on the newly identified related party। जल्दी बताएं, लिखा हुआ है आंसर। क्या वो adequately disclose है? तो यहां से आपके 3 प्रोसीजर मजीद लिंक हो सकते हैं। नोट करें, यहाँ पे लिखें, इसी लाइन के आगे आप मजीद 3 प्रोसीजर्स को लिंक कर सकते हैं। कौन से 3 प्रोसीजर मेरे भाई? मेरे भाई ब्लैक टी शर्ट, कौन से 3 प्रोसीजर्स? कंफर्मेशन मतलब जो न्यू रिलेटेड पार्टी है इसको कंफर्मेशन भेजेंगे, बीच में कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा उसको कंफर्मेशन, उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जबरदस्त। इफ द नॉन डिस्क्लोजर, रिकंसीडर द रिस्क दैट द अदर related parties or significant related party transaction may exist that the management has not previously identified or disclosed to the auditor and perform additional audit procedure as necessary। अपने risk assessment को revise करें, मजीद procedure perform करें। If the non-disclosure by the management appears intentional and therefore indicate the risk of material misstatement due to fraud, evaluate the implication for the audit as per ISA। कौन सा ISA? ISA 240 जब हम पढ़ेंगे उसको। प्यारे बच्चों डन हो गया यहाँ पे।
ये हमने सिनेरियोस पढ़े कुछ, और जो कुछ यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों उसको हम क्या कर चुके हैं, उसको हम एक बार रीड भी कर चुके हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो पढ़ रहे हैं वैसा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब में आपके पास लिखा है। सही। जब आप वॉल्यूम 1 देखेंगे तो वॉल्यूम 1 प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 81 पे आए, तो पेज नंबर 81 से आपको क्या देखना स्टार्ट हो जाएंगे, पास्ट पेपर्स। वॉल्यूम 1 में सिर्फ और सिर्फ किस चीज के पास्ट पेपर्स हैं, कैफ। वॉल्यूम 1 में किस चीज के पास्ट पेपर्स हैं मेरे भाई, सिर्फ कैफ के। सही है। कैफ के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आपको रिलेटेड पार्टी के बाद देखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है। लेकिन आपको जो सवाल दिखेंगे यहाँ पे वो 17-18 तक दिखेंगे, 19, 20, 21, 22 आपको नहीं दिखेंगे। उसका रीजन, उसका रीजन, हाँ जी, वो खुद टाइम करने नहीं यार, क्योंकि 17-18 के बाद पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया था। 17-18 से पहले 25 नंबर के सिनेरियो होते थे, 75 नंबर के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते थे। उसके बाद ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ। जब ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ तो वो जितने भी रीसेंट पास्ट पेपर्स हैं जो कि मेरे लिए बाइबल होंगे, वो कहां पड़े हुए होंगे, वो इस बुक के बिल्कुल एंड में होंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास सवाल किस किस्म के पहले आते थे और अब किस किस्म के सवाल आ रहे हैं और मजीद कैसे सवाल आ सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तभी अगर आप इंडेक्स देखेंगे प्यारे बच्चों, इंडेक्स पाएंगे, एक सेकंड, तो थर्ड लास्ट पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, रिसेंट पास्ट पेपर्स। और यहाँ पे आप पास्ट पेपर्स आपको सारे अवेलेबल होंगे 17-18 से लेके मार्च 22 तक, सितंबर 22 तक, जो भी अटेम्प्ट होगी। 10 हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम ये सवाल देखें, क्या हम ऑटम 2018 पढ़ चुके थे? चलिए मतलब टिक लगाना स्टार्ट करें जल्दी, छेती छेती। ऑटम 18 कर चुके थे। Imran is the audit senior responsible for the audit of PGL. During the audit, he noticed that the PGL made significant transaction with related parties. Requirement: state the audit procedures which should be performed to check whether all the related parties have been, जिसको बताएं क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे टू इंश्योर दैट सारी की सारी आरपी मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज कर दी है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर, डन हो गया, लास्ट क्लास में कर चुके हैं प्यारे बच्चों। सही है। व्हाट स्टेप्स should Imran perform if he identify any related party transaction which were not identified? and आप पेपर में वर्ड भी देख लें, ऐसे ही वो यूज कर रहा है, which were not previously identified, and ये वही वर्ड है जो कहाँ लिखे हुए हैं, जो किताब में लिखा। और किताब जो मेरी है प्यारे बच्चों, ये मैंने खुद नहीं लिखी, मैंने किसके साथ अलाइन कर दी है इसको, हाइजा के साथ अलाइन कर दी है। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये प्यारे बच्चों, अगर आपने जो हैंड आउट पढ़ा, सही है, जब आप हैंड आउट एक बार पढ़ लेंगे, इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, वो आइजा की हो रही है, वो ऑडिट की लैंग्वेज यूज हो रही है। खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करिएगा। इससे फायदा क्या होगा आपको, कैफ तो चले इंशाल्लाह पास हो जाएगा, आगे जाके जब आप सीफएफ 6 में जाएंगे तो वहां पे ओपन बुक पॉलिसी होगा, और जितना कुछ आप कैफ में पढ़ेंगे वो 60% आपका सीफएफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। जितना कुछ आप पढ़ेंगे वो कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। और वहां बच्चे का सबसे बड़ा जो रोना होता है ना, वो ये होता है कि मैं ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को रीड कैसे करूं। सबसे बड़ा मसला जो उसके लिए होता है, 3 किताबें होती है मोटी मोटी, सही है, तो वो उसको रीड कैसे करें। ये जब आप हैंड आउट रीड कर लेंगे और जब आगे जाके आप आइजा को रीड कर रहे होंगे, आपकी टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली सेम होगी। जिस तरीके से आप यहाँ पे हैंड आउट लिखा गया है, ये आइजा में भी ऐसे ही लिखा गया है। आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार यहाँ पे मेहनत कर लोगे, ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपको सीफएफ 6 में क्या मिल जाएगी, आपके लिए आराम से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। डन हो गया प्यारे बच्चों। स्प्रिंग 2018, briefly describe any 3 risk of material misstatement in case of significant related party transaction. हाँ जी, briefly describe any 3 risk of material misstatement in case of significant related party transaction. कोई भी 3 रिस्क। हाँ जी, पहला सारी की सारी आईपी डिस्क्लोज नहीं करी, दूसरा जो बताई है वो एडिक्वेटली, तीसरा आउटसाइड डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डन है यहाँ पे, क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, ऑटम 2015, हाँ जी, 17 तो होमवर्क दिया था ना आपको? नहीं, होमवर्क नहीं दिया था आपको। अच्छा, 17 पे आते हैं, 17 हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। ऑटम 15,
A schedule or related party transaction provided by the client includes two significant transactions which are outside the normal course of business. State the substantive procedure that an auditor should undertake in respect of कौन सी transaction? Outside the normal course of business. हाँ जी प्यारे बच्चों, डन हो गया। और फिर हमने देखा ये, अगर आप देखें ये कौन सी आइटम का सवाल है, ऑटम। तो ऑटम 15 में वो रिलेटेड पार्टी का भी वर्ड यूज करता था और वो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का भी वर्ड यूज करता था। 17 की अटेम्प्ट और 17 के बाद पेपर का पैटर्न कंप्लीटली। और अभी जो आपकी एजुकेशन स्कीम रिवाइज हुई है 1 साल पहले, उसके बाद तो उससे जो ग्रिड में छेड़छाड़ी करी है कैप ने, सिग्निफिकेंटली उसने आइजा के सिलेबस को क्या कर दिया है। पहले क्या होता था 7-8 टॉपिक पढ़ लें आपके 60 नंबर कंफर्म है, इसमें से पेपर आएगा। आई कैप ने वो सारी ग्रिड क्या कर दी है, और जो बहुत ही जजमेंटल एरियाज थे जिसके ऊपर आइजा में गाइडेंस दी हुई है लेकिन स्टेप्स नहीं बताए हुए, उसकी वेटेज बड़ी कम होती थी, 10-15 मार्क्स होती थी। अब उसकी वेटेज के 50-60 मार्क्स पे जा चुकी है।